Hello students. So in last lecture we are talking about some important terms so which are related with the experiment which is done by the Mendel. Okay. So before that is starting the three law of that is a Mendel. It required the monohybrid as well as dihybrid cross. Yes. क्या बोल रही हूँ मैं कि जो एक मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था गार्डन पी पे पाइजम सटाइवम सो आफ्टर दैट ही गिवन थ्री लॉज दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंसी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये तीन लॉ जो है मेंडल ने दिए थे सो बिफोर स्टार्टिंग दिस थ्री लॉ so for explaining these three law it required two crosses or two that is a hybrid monohybrid as well as dihybrid so इस lecture में we are talking about the fully on monohybrid cross or what is this monohybrid yes monohybrid cross क्या है and on this the long question lot of time the question is asking on board exam so what is the monohybrid cross एक्सप्लेन विथ अ सुटेबल एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार पूछा जा चुका है इट इज वेरी इजी आप मेंटली यहाँ पे रहिए सो आपको ये इजीली जो है समझ में आएगा व्हाट इज दैट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी आर टॉकिंग अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस yes monohybrid cross so in last that is a lecture what is the monohybrid we are talking yes now here deeply what is this monohybrid cross because with the help of this so we are explaining the three laws that is the two law and for the third law it requires the dihybrid cross okay so what is this monohybrid cross already we are talking about this but फिर भी हम इसके बाद में जो है डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन two pure parent two contrasting pure parent in which consisting one that is a one character or one trait of the one trait so which is called as monohybrid cross yes what is the monohybrid cross between two pure parents cross between two pure parents यहाँ पे अब हम एक एग्जांपल लेंगे सो इसके पहले हमने टॉल डॉफ ऐसे ही बोला है अभी हमने एक न्यू कैरेक्टर लेंगे यस आउट ऑफ दिस 7 कैरेक्टर समझ में आ रहा है पी के जो 7 कैरेक्टर है उसमें से हम एक कैरेक्टर लेंगे दैट इज अ राउंड एंड रिंकल्ड हियर एग्जांपल यहाँ पे हम एक लेंगे राउंड एंड रिंकल्ड ये क्या है राउंड एंड रिंकल्ड सो दीज आर द शेप ऑफ द सीड यस shape of the seed character है shape of the seed and here the trait is round and wrinkled yes so what is the monohybrid cross between two pure parent in which consisting one pair of the one trait of the or one that is a trait or one character one contrasting character so after that there is a formation of hybrid and that hybrid it is called as monohybrid and that cross it is called as मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस दो प्योर पैरेंट विच आर कॉन्ट्रास्टिंग वन इन विच कंसिस्टिंग ओनली वन दैट इज अ ट्रेट ओनली वन ट्रेट लिसन ट्रेट बोल रही हूं मैं ट्रेट यानी क्या दैट इज इनहेरिटेड एंड वेरिएंट that is the character so which is called as trait here only we are considering only one trait so which is called as that is the monohybrid cross so with the help of example हम एग्जाम्पल लेके ही एक एक्सप्लेन करेंगे इससे आपको इजीली में समझ में आएगा व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे दैट इज वन एग्जाम्पल इज राउंड एंड रिंकल व्हाट इज दिस राउंड एंड रिंकल सो एक्चुअली दिस इज द ट्रेट यहाँ पे ये ट्रेट है कैरेक्टर क्या है दैट इज द शेप ऑफ द सीड yes so here one example is given that is a round and wrinkled yes so round so these are the parents अभी यहाँ पे लिखेंगे हम सिस्टमैटिकली लिखेंगे यहाँ पे पूरा आपको ऐसे ही क्रॉस करने का है यस यहाँ पे इसको लिखेंगे पेरेंट्स का सिंबल क्या है दैट इज अ पी यस पेरेंट का सिंबल क्या है पी
yes, after that, so it is denoted with the, that is a genotype. इसके जीनोटाइप क्या है? yes, कैपिटल R, और इसके क्या है? स्मॉल r. so these are the genotype is it is a denoted with the G से भी हम डिनोट कर सकते हैं. yes, so कैपिटल R, so these are the genotype of the round, एंड रिंकल के क्या है? स्मॉल r. यह हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग रहता है. सो यहाँ पे ये कैपिटल आएगा तो इससे स्मॉल आएगा. आप बोलेंगे WW आएगा, नहीं, ये डॉर्फ है, डॉर्फ यानी रिसेसिव है. सो दैट्स व्हाई हियर सो स्मॉल r. ओके, अब इसमें क्रॉसिंग होगी कि कैसे होगी? देखिए, यस, यहाँ पे क्रॉसिंग होगी. यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल, उसके गैमेट क्या है? ये दोनों सेम है, इसकी वजह से एक ही गैमेट आएगा. कौन सा गैमेट आएगा? दैट इज अ कैपिटल R. ये बोथ आर द सेम, सो हियर ओनली वन दैट इज अ गैमेट, स्मॉल r. बोथ आर द गैमेट. क्या है ये? गैमेट है. यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, ये क्या है? गैमेट है. यस, अभी इस गैमेट में क्रॉसिंग होगी, इस गैमेट में क्रॉसिंग होगी. यस, क्रॉसिंग, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल R, स्मॉल r. सो व्हाट इज दिस? दैट इज द F1 जनरेशन. एंड हमने देखा था इन लास्ट लेक्चर, F1 जनरेशन किससे डिनोट किया जाता है? दैट इज अ here like that, F1 यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन. सो ये राउंड है या रिंकल्ड है? यस, ऑब्वियसली इट इज अ राउंड वन, बट इट इज अ heterozygous. यस, इट इज अ राउंड बट इट इज अ heterozygous. heterozygous यानी डिफरेंट. ये सब टर्म हमने इसके पहले जो लेक्चर हुआ उसमें देखे हैं. हिट्रो, बोथ आर द डिफरेंट, heterozygous कंडीशन, बट इट इज अ राउंड वन. यस, मीन्स हियर, अभी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है? दैट इज अ राउंड कैरेक्टर डोमिनेंट है. यस, अभी इसके बाद में क्या होगा? हियर F1 इज क्रॉसेस विथ सेल्फ, दैट इज F1 इज क्रॉसेस विथ और सेल्फिंग. हियर अब क्या आएगी नेक्स्ट स्टेप? F1 इज क्रॉसेस विथ सेल्फ. सो F1 क्या है? कैपिटल R, स्मॉल r. सेल्फ यानी उससे ही क्रॉस होगा, कैपिटल R, स्मॉल r. यहाँ पे गैमेट क्या हो गए? दो, यहाँ पे सेम था इसलिए एक ही गैमेट आया, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग अलेल्स है. सो इसकी वजह से दो गैमेट आएगी, एक है कैपिटल R, एक है स्मॉल r. और इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, कैपिटल R और स्मॉल r. अभी इसको क्रॉसिंग होगी. सो हियर फर्स्ट इसमें करेंगे, क्या आएगा? कैपिटल R, और इसके बाद इसका और इसका करेंगे, क्या आएगा? कैपिटल R, स्मॉल r. इसका और इसका कैपिटल R, स्मॉल r, और इसका और इसका स्मॉल r. सो व्हाट इज दिस? दीज आर द F2 जनरेशन. समझ में आया कैसे क्रॉसिंग की? यहाँ पे दो अलग अलग, यहाँ पे here heterozygous condition is present, so that's why here the two, that is the two different gene or two different alleles are present, so that two different gametes यहाँ पे आए, एक है कैपिटल R, एक है स्मॉल r. यहाँ पे भी कैपिटल R, स्मॉल r. तो पहले क्या करेंगे? इसको ये दोनों से क्रॉस करेंगे, दोनों से पहले कैपिटल R को इस R से क्रॉस करेंगे तो कैपिटल R. इसको इससे क्रॉस करेंगे, कैपिटल R, स्मॉल r. कभी भी कैपिटल लेटर पहले लिखना है. उसके बाद ये हो गया, अभी इसको क्रॉस करेंगे, इसको इससे क्रॉस करेंगे, कैपिटल R, स्मॉल r. इसको इससे क्रॉस करेंगे, स्मॉल r. सो दिस इज द F2 जनरेशन. क्या है F2 जनरेशन? सो व्हाट इज दिस? कैपिटल R. सो इट इज अ राउंड वन. क्या है ये? राउंड है. कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r, बोथ आर द सेम. ये क्या है? राउंड है, बट इट इज अ heterozygous कंडीशन. क्या है ये? heterozygous कंडीशन है. एंड लास्ट वन स्मॉल r. दिस आर द wrinkled. क्या है ये? wrinkled है. सो उसके बाद में देखिए, समझ में आ रहा है? यस, ये हम पनेट स्क्वायर में भी कर सकते हैं. पनेट स्क्वायर, और उसे हम चेकर बोर्ड कहते हैं. क्या है ये चेकर बोर्ड? चेकर बोर्ड यानी ऐसे बोर्ड में उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, यही क्रॉस हम इस बोर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं. कैसे? देखिए, यहां पे ये देखिए, पेरेंट्स, एक मेल रहता है और एक फीमेल रहता है. इसमें से एक कौन सा भी मेल है, एक कौन सा भी फीमेल है, कौन सा भी हो सकता है.
ऐसे नहीं कहा जाता है ये मेल है यानी एंड्रोशियम, इसको में हो गया ऑर्गेनाइजेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, सो चेकरबर्ड में एक पहला जो बॉक्स है इसमें एक मेल एक फीमेल करेंगे, उसके बाद हमारे यहाँ सेल्फिंग इसके बाद में करना पड़ता है चेकरबोर्ड। ये 2 गैमेट है, यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, उसको क्रॉस किससे किया जाए, कैपिटल आर स्मॉल आर। सो देखिए आपको समझ में आएगा, यहाँ पे क्रॉसिंग करने के बाद कैपिटल यहां से इसको क्रॉस करेंगे क्या आएगा, कैपिटल आर, इसको इससे क्रॉस करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इससे क्रॉस करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इससे क्रॉस करेंगे स्मॉल आर। यस, सो हियर सो दिस इज द F2 जनरेशन। ये क्या है, F2 जनरेशन है। एंड एट लास्ट फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो। अभी ये क्या है, फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो। We have seen before this phenotype. What is the phenotype? External appearance, बाहर से क्या दिखता है। So यहाँ पे कितने ऑफस्प्रिंग आए हैं, 4, 1 2 3 4 आए हैं। 4 में से हम देखेंगे बाहर से हमें दिखने वाले कितने राउंड है और कितने रिंकल्ड है बाहर से। अभी इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देखेंगे, हम सिर्फ बाहर से देखेंगे क्योंकि इट इज अ फिनोटाइपिक रेशो। सो देखिए, सो दिस इज द राउंड, यस, दिस इज ऑल्सो राउंड, सो दिस इज ऑल्सो राउंड, बट दीज आर द रिंकल। मीन्स हाउ मेनी राउंड, सो हियर द 3 आर द राउंड एंड हाउ मेनी रिंकल्ड, ओनली 1। सो रेशो इज 3:1 रेशो। यहाँ पे लिखा जा सकता है, यहाँ ऐसे लिखेंगे हम, यहाँ पे सॉरी, फिनोटाइपिक रेशो राउंड एंड हियर रिंकल्ड। राउंड कितने आए हैं, 3 आए हैं, और रिंकल कितने आए हैं, ओनली 1। सो फिनोटाइपिक रेशो इज 3:1। समझ में आ रहा है कैसे 3:1 आया है। यस, हियर फिनोटाइपिक रेशो इज 3:1। 3 आर द राउंड एंड 1 इज रिंकल्स। हियर ये राउंड है, ये दोनों, आप बोलेंगे ये तो राउंड है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, बट इट इज अ राउंड। ये कैसी है, राउंड। हमें बाहर से कैसी दिखती है, राउंड दिखती है। सो दैट्स व्हाई 3 आर द राउंड एंड 1 इज रिंकल्ड। ओके, आफ्टर दैट जीनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइपिक रेशो, अभी जीनोटाइप यानी क्या, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। या जीनोटाइप यानी क्या, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अंदर से उसके ये सब क्या है, अभी जीनोटाइप है। यस, वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आए, किस रेशो में आए, उसे जीनोटाइपिक रेशो कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कैपिटल आर कितने हैं, कैपिटल आर देखिए यहाँ पे ओनली 1 इज प्रेजेंट। ओके, सो आफ्टर दैट कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, ये कितने हैं, 1 और 2, कितने हैं, 2। और आफ्टर दैट स्मॉल आर कितने हैं, 1 है। सो रेशियो क्या है इसका, 1:2:1। सो दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो। समझ में आया है जीनोटाइपिक रेशियो कैसे कहा, कैसे निकाला है। जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रहता है ये सिर्फ क्या है, राउंड और रिंकल, ये फिनोटाइप है, वेदर द सीड आर राउंड और रिंकल। बट हम अगर अंदर से उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेक करेंगे, एट दैट टाइम इट मे बी राउंड or it may be heterozygous round or it may be wrinkled. So that is the genetic constitution, so which is called as genotypic ratio, and genotypic ratio is 1:2:1. समझ में आया। So this is the monohybrid cross. Again हम शॉर्ट में देखेंगे monohybrid cross क्या है। It is very easy, आपको एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, 1 मार्क के लिए डेफिनेशन, एंड बाकी का एक्सप्लेनेशन जो है वो 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। यस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन 2 प्योर parent contrasting that is a character in which crossing is takes place, in which consisting only one trait, उसमें ओनली 1 ट्रेट होता है, उसके बीच में जो क्रॉसिंग होती है उसे क्या कहा जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यस, इट इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन 2 प्योर पेरेंट इन विच कंसिस्टिंग 1 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर consisting 1 trait, so which is called as monohybrid cross. Yes, so here we are taken one example, that is a round and wrinkle. This is the shape of the seed.
सो हियर ये सब लिखना पड़ता है, इसको पूरे मार्क्स होते हैं, ये पेरेंट्स, जीनोटाइप, गैमेट, F1 F2 ये सबको मार्क्स होते हैं। इसी तरीके से आपको लिखना है। ये फिनोटाइपिक रेशियो भी आपको ऐसे ही लिखना है, इससे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेप इसमें इंपॉर्टेंट। जैसे आपके मैथ में हर एक स्टेप को मार्क्स मिलते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हर एक स्टेप को जो है आपको मार्क्स मिलते हैं। सो सी हियर, क्या रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, समझ में आएगा आपको। हमने एक एग्जांपल लिया है, आउट ऑफ द 7 कैरेक्टर वी आर टेकन 1 कैरेक्टर। आप अलग एक एग्जांपल लेके आप खुद करके देखिए, आपका रेशियो आता है नहीं है वो बोलिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सी हियर, here we are taken one example, that is a round and wrinkle. So this is one trait. So the genotype of this round is capital R, capital R. Wrinkle के small r है. So both are same. So here only one gamete is present. Both are same. So that's why here one gamete. And जब इसकी crossing की, so here in this F1 generation, capital R, small r. What is this? These are the round, but it is a heterozygous condition. Round है, but these are the heterozygous condition. After that, नेक्स्ट स्टेप क्या है, F1 इज क्रॉसेस विथ सेल्फ। ये जो F1 आया है उसको ही सेल्फ क्रॉस करना पड़ता है। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, द गैमेट आर, कैपिटल आर, स्मॉल हियर। अभी ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पे 2 गैमेट आएगी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। उसको हम क्रॉसिंग करेंगे। क्रॉसिंग कैसे करने की, पहले ये जो गैमेट है इसको इन दोनों से क्रॉस करने का। पहले कैपिटल आर, कैपिटल आर, सो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। आप अब इसको स्मॉल आर कभी भी कैपिटल लेटर पहले लिखते हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पनेट स्क्वायर कहा जाता है क्योंकि सी पनेट नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पनेट स्क्वायर और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेकर बोर्ड। इसे चेकर बोर्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे बोर्ड में लिखा जाता है, उसे चेकर बोर्ड कहते हैं। तो हमें यही यहाँ पे लिखा है, देखिए ये आपको आसान जाएगा। यहाँ पे 2 गैमेट है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, उसको क्रॉस करने वाले भी 2 गैमेट है, कैपिटल आर, स्मॉल आर। सो क्रॉसिंग की हमने, कैपिटल आर, हियर कैपिटल आर, स्मॉल आर। सो आफ्टर दैट कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ओके, yes, so this is a F2 generation, second filial generation. So after that the phenotypic ratio, phenotypic ratio यानी का एक्सटर्नली ये कैसे, राउंड है या रिंकल है, ये खाली ये 2 बातें देखने की। राउंड कितने हैं, ये राउंड है, ये राउंड है, ये राउंड है, तीनों राउंड है और एक रिंकल है। सो दैट्स व्हाई द phenotypic ratio is 3:1. Yes, 3:1. Whereas genotypic ratio यानी क्या है, जेनेटिक कंस्टिट्यूएशन। सो इन दिस जेनेटिक कंस्टिट्यूएशन अभी हम इसका जेनेटिक कंस्टिट्यूएशन देखें, अंदर से देखेंगे वेदर दिस इज कैपिटल आर और कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर, स्मॉल आर। सो कैपिटल आर मीन टोटल कंप्लीट राउंड इज 1 and heterozygous round is 2 and small r wrinkled is 1. So that's why the genotypic ratio is 1:2:1. And listen, so these, that is the in monohybrid cross, phenotypic ratio is always 3:1 and genotypic ratio is 1:2:1. आप जो पी के कौन सा भी एक 7 कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर लीजिए और ऐसे ही क्रॉस कीजिए, रेशियो यही आएगा। कौन सा, फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 3:1। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज, दैट इज 3:1। व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, 1:2:1। सो दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो। Yes, so here these are the monohybrid cross. Yes, these are the monohybrid cross. अब हम जो है यहाँ पे आप कौन सा भी एक एग्जांपल ले और इसको सॉल्व कीजिए। समझ में आया है? यस, यहाँ पे कौन सा भी एक एग्जांपल, मैं आपको होमवर्क के लिए एक एग्जांपल दूंगी। यस, हियर आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। आप क्रॉस कीजिए और मुझे जरूर बताइए आपका क्रॉस आया या नहीं आया। यस, एग्जाम्पल मैं देती हूँ, दैट इज द पोजिशन ऑफ फ्लावर। पोजिशन ऑफ फ्लावर क्या है, पोजिशन ऑफ फ्लावर, दैट इज एक्सियल एंड टर्मिनल। यस, हियर ए क्रॉसेस विथ स्मॉल ए। इसको क्रॉस कीजिए और मुझे जरूर बताइए वेदर द रेशो, आपका जो रेशो आता है नहीं। यस,
All of you understood? Okay. Thank you.